The Speaker had called in a business advisory committee meeting just to schedule it tomorrow, but the complete opposition, which includes the Congress, Samajwadi Party, TMC, and you name it, the complete opposition has walked out of the chambers of the Speaker. So it's a clear message that the government is trying to bring in the Waqf bill tomorrow, and the opposition is trying to clearly blockade it. Government does not want that the Waqf bill should come or should be tabled. We can see the protests which are happening on the streets, but now they have completely walked out of the chambers of the Speaker from that BAC meeting. Yes, Indeed, and the preliminary point of contention has been the inclusion of the collector in the survey, that they have removed the roles of the Waqf board in terms of the survey, and the second part that has been contentious is about inclusion of non-Muslim members in the Waqf board. Why is the opposition very adamant on these 2 points, Aishwarya, if you can tell us more about it? No, that is also there, but that contention was also there for Chirag Paswan's LJP, for TDP, and that has been resolved, because the government, the solution will only come when you discuss. It is not that the solution will not come if you don't discuss. The opposition want disruption and not discussion. TDP and LJP also had these specific points, but the government reached out to them, tried to convince them that, look, this is how we are creating a new alternative which will work for the masses and just not for the elite. And that's why the government is saying, let's have a discussion again. And that's why they're tabling it or they want to table it tomorrow in Lok Sabha, and they want to follow a unanimous process, and that's why the BSC was called in. But the complete opposition, including that of Congress, I repeat, the SP, for our viewers, TMC, NCP, the complete opposition, ranging from Congress to the Aam Aadmi Party, have walked out of the Business Advisory Committee meeting which was happening in the chambers of the speakers. The numbers tell us a big story. TDP has 16 MPs. गरीब मुसलमान बच्चों का फ़ायदा होने वाला है, और ये विपक्ष के जो लोग अपोज कर रहे हैं सिर्फ वोटों की राजनीति खेल रहे हैं। बहुत सी वर्क प्रॉपर्टी यही राजनीतिक लोगों ने हड़प की है। कर्नाटक में होंगे और जहाँ होंगे, सिर्फ लोगों को बताने के लिए, माइनॉरिटीज़ की वोट पाने के लिए गलत फहमियाँ उनके पास लेके जा रहे। वर्क अमेंडमेंट बिल आने के बाद गरीब मुस्लिम जनता का फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से जो डिसेंट नोट है या फिर जो भी शंकाएं हैं, तमाम चीज़ों का समाधान जो है विपक्ष को सुना गया, लेकिन विपक्ष, आप लोग कह रहे हैं ये गरीब मुस्लिमों के हित में, महिलाओं के हित में है, ये अभी भी टिल डेट ओवैसी जी कह रहे हैं नहीं, ये असंवैधानिक, ये मुस्लिमों के हित में नहीं है। देखो, ओवैसी को तो मुस्लिम राजनीति खेलने की है, मुस्लिम वोट पाने के लिए कांग्रेस में और उनमें कंपटीशन है, किसके साथ मुस्लिम जनता जाएंगी। इसलिए कांग्रेस चिल्ला रही है, इसीलिए ओवैसी भी चिल्ला रहे हैं। वो सिर्फ वोट पाने के लिए, जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर अधिकार किसका है। कांग्रेस चिल्लाएगी तो कांग्रेस को लगेगा कि मेरा है। अभी कांग्रेस चिल्ला रही है, इसीलिए ओवैसी चिल्ला रहे हैं, ओवैसी चिल्ला रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी चिल्ला रही है, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम लोगों को भड़का के उनका वोट पाना, यही उनका अंतिम हेतु है। आप लोगों का क्या स्टैंड है, आप लोग क्या कहना चाहिए? हम लोग वर्क अमेंडमेंट बिल के साथ में हैं। जो बिल लाएगा हमारी पार्टी उनको सपोर्ट करेंगी। उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उबाटा, वो उसका अपोज कर रही है लगातार, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखो, उद्धव बाला साहब ठाकरे जो पार्टी चला रहे, वो कांग्रेस से हाथ मिला के अपनी पार्टी चला रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने उनको दम दिया होगा, तुम ये अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वोटिंग करो, खिलाफ बोलो, इसीलिए अभी वो खिलाफ है। जिस पार्टी का हमारे जो फाउंडर है, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे, उनकी भूमिका थी वक्फ कायदा ही रद्द होना चाहिए, लेकिन सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को डर के उबाटा के लोग इस बिल को, अमेंडमेंट बिल को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको विरोध कर रहे हैं। ये शर्मनाक बात है। जिस बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेते हैं वोट पाने के लिए, ये कांग्रेस के गुलाम हो गए हैं। महाराष्ट्र की जनता, जो बच्चे कुचे जो है, वो भी अभी उनके साथ में रहने वाले नहीं है। Viewers, the opposition has staged a complete walkout from the Business Advisory Committee meet that was underway in the Lok Sabha, opposing the Waqf Amendment Bill and raising their dissents. In fact, the major point of friction has risen over two things. Also being joined by my colleague Kruthart to get us more updates into the matter. Kruthart, speak to us about this entire walkout that has been staged, especially at, मुसलमानों को फायदा होगा।
लाखों करोड़ों की जमीन है वो सिर्फ मुसलमान समुदाय में जाएगी। सोचिए, रेलवे से ज्यादा जमीन है इनके पास और वो उनके लाभ में, उनके भले के लिए जाएगी। यही बात की पीड़ा है। वोट के लिए उन लोग उनको गरीब रखना चाहते हैं उस समुदाय को। ये बहुत गलत बात है। ये जा रही है, ये सारे गरीब मुसलमानों, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके अच्छे कार्यों के लिए, उनके शादी ब्याह के लिए अनगिनत कार्य होंगे और कई लाख करोड़ की जमीन है वो गरीब मुसलमानों की। ये बिल पढ़ें आप लोग तो जो उन लोग तब पता चलेगा। ये लोग नहीं चाहते हैं, समुदाय चाहता है जिनकी, और कई धांधली हुई है, कई जमीनें कब्जा हैं वक्फ के नाम पे, तो वो होगा। अब चर्चा पर आएगा कल बिल, आप लोगों को पता चलेगा जब हम लोग अपनी बात रखेंगे। आखिरी सवाल कि हाउस एडजर्न हो गया आज 2 बजे तक के लिए, कौन सा मुद्दा था जिसको लेकर हाउस एडजर्न? ये मुद्दा वो सपा विरोधी और सुमन की बात का तख्ता लेके आ गए। तख्ता, जब तख्तेबाजी, नारेबाजी मना की गई है, ये लोग काहे तख्ताबाजी करता है, हमको समझ में नहीं आता। और करोड़, लाखों करोड़ का इस देश की पंचायत में जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद होता है। वेरी सैड।